सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले के बारे में उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमला किसानों द्वारा नहीं बल्कि किसानों की आड़ में किया गया असामाजिक तत्वों की ओर से हमला था। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि पंजाब में अमन और शांति हो और लोग यहां पर खुशहाल हो। चलिए सुनते हैं अश्विनी शर्मा से इस हमले के बारे में हुई बातचीत के कुछ अंश, जिन्हें आप तक लाए हैं फास्ट वे पठानकोट के संवाददाता कि किस दृष्टि से देखते हैं वह इस हमले को। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। और इस वक्त मैं खड़ा हूं पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी के घर के बिल्कुल सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं, अखबार की ये सुर्खियां बनी हुई हैं आज और हर टीवी चैनल की यही हेडलाइन है कि पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर टांडा के पास जो है वो हमला किया गया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, वो बाल बाल बचे। करते हैं उनसे बात और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। पर इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि कानून को लेकर के लड़ाई हो, कानून के अध्यादेशों को लेकर के लड़ाई हो या फिर किसी तरह की कोई आपसी रंजिश, पर आज के दौर में राजनेता जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। करते हैं जाके अश्विनी शर्मा जी से बात और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में कि आखिर माजरा क्या है। हाँ जी, इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ बैठे हैं जी पंजाब प्रदेशाध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी के कोल ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਕੱਲ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ऐसा है कि पहली गल है कि ये अचानक हमला नहीं है, मैनू ये शंका ही नहीं है, पूरा यकीन है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके नाल ये हमला जड़ा है वो किया गया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲਗਭਗ 6:40 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 20-25 ਲੋਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ ਬੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੂਚੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ किसान क्योंकि अंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी गल कहने का अधिकार है। किसानों को अपनी गल कहने का अधिकार है, सानू अपनी गल कहने का अधिकार है। और किसान को लैके भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशील है और अज भी संवेदनशील है। लेकिन ये अंदर सरकारी मिली भगत जी है वो दिखाई दे रही है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ 20-25-30 ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਵਾਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 7-8 ਗੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ। किसान तो उत्ते कोई नहीं सी, लेकिन 7-8 गुंडे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ भी खड़े ने। अगर ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो कांग्रेस ਨੂੰ बड़ी शर्मिंदगी ਜਿਹੜੀ ਹੈ महसूस करनी पेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। सर, गल करिए ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
नहीं उत्थे मीटिंग के अंदर तो कोई नहीं आ पाया, पर जिथे मीटिंग हो रही है ਉਹਦੇ 10 मीटर की दूरी के उत्ते पुलिस ने 25-30 लोग उत्थे बिठा रखे सी। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस ने, क्योंकि जिथे पंजाब सूबे के प्रधान की बैठक चल रही होए 10 मीटर की दूरी ते कोई आ जाए और पुलिस उत्थे मूक दर्शक बन के खड़ी होए, ये तो कि ये लगता है कि पुलिस द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित मामला है। और उत्थों ही 2 गड्डियाँ मेरे पिछे लगियाँ, उन्होंने मेरे आन की जान की जानकारी है। हुण तां मेरे को जिहड़ी खबर आ रही है कि एक जना उन्होंने चो फेसबुक के उत्ते लाइव होके कह रहा सी कि प्रधान जिहड़ा भोगपुर पुज गया, तैयारी कर लो अपनी पूरी। इस तरीके दीयां गल्लां भी बाहर निकल के आ रही हैं, लेकिन सरकार की नाकामयाबी है। और मैं तो ये कहना कि किसानों के अंदोलन नूं बदनाम करन दी साजिश भी है। सर गल करांगे तुहाडे तुहाडे उपर होए इस हमले बारे, तुसीं उपर हाई कमान दे नाल कोई गलबात हुई है तुहाडी, उन्हां दा की अगों जिहड़ा हैगा विचारधारा बनी है? नहीं, ऐसा है कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नूं सारी घटना की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और मैं कल रात को ही अध्यक्ष जी को पूरी जानकारी जी है वो देती है कि इस प्रकार का वातावरण जोड़ा ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर बनाना चाह रही है और ये लोकतंत्र लिए अच्छा नहीं है। सर एक चीज़ डिफाइन करना चाहांगे भी जेडे हमलावर सीगे ये वाकई किसान सीगे जां कुछ खरीदे हुए गुंडे सीगे? किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। पंजाब का किसान बड़े दिनों तो धरने ला रहा, असी रोज़ लंघ के जाने आ, किसान ऐसा नहीं कर सकता। ये शरारती तत्व योजनाबद्ध तरीके दे नाल भेजे गए ने और ये अंदर सरकार की मिली भगत है, सरकार की शह है, इस करके ये घटना घटी है। सर ये जांच के आदेश जोड़े ने वो दे दिते गए ने जां किस तरह की कोई अगे जांच होएगी? पता नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते अपनी कंप्लेन जी है जो उत्थे घटना वापरी है उसकी जानकारी जी है वो थाने च देती है और उस तो बाद देखते हैं सरकार की नीयत कैसी है। सर एक आखिरी सवाल किसानों के मसले में लैकर के है कि अज 25 तो ज़्यादा जथेबंदियां जड़ियां ने वो हाई कमान को मिल रही ने, ये अध्यादेश जोड़ा पास होया उन्होंने लैकर के की लगता सर किस तरह के अगे जड़े ने निर्णय जड़े ने हाई कमान द्वारा लिते जाएंगे जां की रिजल्ट आने की जड़े है ने वो आशंका जी जाहिर की जा रही? ऐसा है कि साड़ी सब की बहुत पुरानी इच्छा सी और असी बार बार उन्होंने निमंत्रण भी दिता सी और ये सुखद गल है कि जथेबंदियां जड़ियां है सरकार दे नाल बैठन जा रही हैं और इन्हां कानूनों नूं लैके जड़ियां शंका उन्होंने मन च है, कोई शुबे उन्होंने मन च है, वो सरकार तक जाणगे और सरकार और उन्होंने विचकार जी गलबात होएगी, मैनूं लगता है कि उहदे सुखद परिणाम होणगे। और ये अपना जरूर मनना है कि ये कानून मोदी सरकार ने किसानों के चेहरे ते खुशी लियाण लई बनाए ने, ना कि उन्होंने चेहरे के उत्ते कोई दुख लियाण लई। और नाल ये कानूनों की विशेषता यह है कि पुराने कानून के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं है। पुरानिया व्यवस्थावां एज इट इज़ चलन वाली हैं, मंडी एज इट इज़ चलन वाली है, सरकारी खरीद होने वाली है, MSP एज इट इज़ रहन वाली है। केवल एक विकल्पिक व्यवस्था जी है वो दी है कि जे किसी को MSP तो ज़्यादा भाव मिलता है तो वो बाहर भी अपना अनाज अपनी मर्जी नाल बेच सकता है। मोटी जी गल ये है। सर आखिर दे विच जिहड़ा तुहाडे ते हमला होया है तुहाडे जिहड़े प्रशंसक ने जां पार्टी वर्कर कह लो जां आम जनता जिहड़ी है वो बड़ी इस चीज़ को लेके पैनिक दे विच इस चीज़ को लेके बड़ी दुख प्रगट कर रही है कि राजनेता ही जे सुरक्षित नहीं तो आम जनता का की होएगा, उन्हां दे लई कोई आखिर दे विच कोई संदेश? BJP नाल प्यार करने वाले सब पंजाबी वीरां भैणां नूं और पार्टी दे जिहड़े वर्कर ने उन्हां नूं यही अपील है कि पूरा संयम रखना चाहिए है, पंजाब दे अमन और शांति नूं बरकरार रखना चाहिए है। शरारती तत्वां दे जिहड़े पंजाब दा माहौल खराब करना चाहते ने उन्हां दे बहकावे च बिल्कुल नहीं फसना। पंजाब साडा है, पंजाबी साडे ने, इहदा अमन और शांति साडे सब दे लई महत्वपूर्ण होनी चाहिए है। यही मैं सारिਆਂ दे अगे अपील करदा। सो ये सीगे पंजाब प्रदेशाध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी जिन्होंने अपने उपर होए हमले के बारे दे विच विस्तार के नाल दस्सिया ते नाल ही नाल पूरी जनता नूं ये अपील की है कि सानू पंजाब जिहड़ा है साडा हरियावला पंजाब है, इस दे विच अमन अमान जिहड़ा है मुढ़ कदीम तो चलदा आया तो हुण भी जिहड़ा अमन अमान जिहड़ा है वो बरकरार रखना चाहिए है। मैं सतिंदर सिंह कैमरामैन सोनू बाजवा दे नाल फास्ट वे हलचल दे लई।